Hello dear students, this is Sanjay Gupta once again before you in the CPT class of today, MA third semester Political Science. I hope that every one of you is in good health, must be cheerful, must be happy, must be satisfied, must be contented, because I believe that you must be in good health, you must be following all the precautions. You must be exercising every day, daily, and must be following all your routine in a proper manner, besides paying attention to your studies. And that is why I say that you must be happy and cheerful, because if you stick to your routine in a proper manner, in a disciplined manner, you will always be in good shape, in good health, in good mood, and in good spirit. So with all these words, let me speak today something about the critical aspect of behavioralism. If you remember that in the last lecture I have spoken to you about behavioralism, and I believe that I have already taken at least 4 classes on behavioralism. So today is going to be the 5th class, but this is going to be a bit different, because today's lecture will be partly be about the criticism of behavioralism, and thereafter followed by post-behavioralism. So in a way it would be a mixed class, a mixture of criticism of behavioralism, which is again very important, and the following part will be the part concerning the post-behavioralism. तो विद्यार्थियों, मैंने आपको पिछली बारी व्यवहारवाद के विषय में कुछ बताया था, बल्कि पिछले 3-4 लेक्चर से ही व्यवहारवाद के बारे में हम आपसे बातें कर रहे हैं. And I am pretty sure that by now you must be having a fair idea of what behavioralism is. So you must try to build your answer over my lecture, as well as the readings that you are doing or that you may be doing subsequently to my lectures on behavioralism. So when we speak about criticism of behavioralism, जब हम व्यवहारवाद के आलोचना के संदर्भ में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर 2-3 बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि किसने किसने व्यवहारवाद की आलोचना किया है. हु आर द स्कॉलर्स हु हैव क्रिटिसाइज्ड बिहेवियरलिज्म. नंबर 1 स्कॉलर इज नील रीमर. नील, NEAL, नील, REAMER, Reamer, Neil Reamer. Now Neil Reamer is a prominent critic of behavioralism, and he says that behavioralism shouldn't be accepted as a philosophy, it shouldn't be accepted as an approach to the study of political science, because it dismisses the ethical understanding of the political science. It dismisses the ethical reconstruction of the discipline of political science. Neil Reamer is of the opinion that behavioralism is a discarded philosophy. Discarded in the sense, or discarded because this theory is not ready to accept the ethical dimensions of political science. It is not concerned with the ethical part of the political science. He says that political science is basically a normative science. It is an ethical science. It is concerned with the reconstruction and the rebuilding of the state and the human personality. नील रेमर का ये मानना है कि व्यवहारवाद को राजनीतिक दर्शन के या राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए. राजनीति शास्त्र को
राजनीति शास्त्र के अध्ययन में व्यवहारवादी उपागम को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान का एक आदर्शवादी स्वरूप को स्वीकार करने से मना करता है। बिकॉज बिहेवियरलिज्म इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द एथिकल डायमेंशन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। व्यवहारवाद इस बात को नहीं मानने को तैयार है कि राजनीति विज्ञान का कोई एक आदर्शवादी भी स्वरूप होता है, कि राजनीति विज्ञान को हम एक एथिकल रिकंस्ट्रक्शन अर्थात एक आदर्शवादी निर्माण के रूप में हम देख सकते हैं। अर्थात राजनीति विज्ञान के माध्यम से हम राज्य के या व्यक्तियों के व्यक्तित्व का एक आदर्शवादी स्वरूप देख सकते हैं, या एक आदर्शवादी दृष्टिकोण से हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो therefore he says that behavioralism is not concerned with the ethical part of the political science or the ethical part of the human behavior। व्यवहारवाद जो मनुष्य के व्यवहार का राजनीतिक अध्ययन करने से संबंधित एक विचारधारा है, वही विचारधारा मनुष्य के आदर्शवादी व्यवहार को अध्ययन से मना करता है। It rejects the study of the ideal behavior of the individual because it basically wants to focus on the political role of the individual। एक व्यक्ति का राजनीतिक भूमिका के रूप में अध्ययन वो करना चाहता है, उसका एक आदर्शवादी व्यक्ति के रूप में अध्ययन नहीं करना चाहता है। For example, when Plato talked about the role of the philosopher ruler, Plato then was emphasizing what kind of a ruler should be actually। एक शासक को वास्तव में किस प्रकार का होना चाहिए। अगर उसमें वो वास्तविक गुण नहीं है तो वो राज्य को संभाल नहीं पाएगा। Plato was focusing on this point that if the king did not have the required virtues to govern the society, then he won't be able to control or administer the society because he was bereft of those values, of those virtues। Therefore, Neil Riemer says that since the ethical study of political science, since the ethical study of human behavior is beyond the purview of behavioralism, therefore it doesn't qualify to be studied as an approach to the study of political science। चूँकि ये न व्यक्तियों के न राज्य के आदर्शवादी दृष्टिकोण का अध्ययन करता है, इसलिए इस व्यवहारवाद नाम की विचारधारा को या दृष्टिकोण को या प्रवृत्ति को त्याग दिया जाना चाहिए। इट शुडंट बी मेरिटिंग द अटेंशन ऑफ द स्कॉलर्स और द इंटेलेक्चुअल्स। विद्वानों को, बुद्धिजीवियों को इस प्रकार के अध्ययन शैली के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। इट शुड बी डिस्कार्डेड बाय द इंटेलेक्चुअल्स और द स्कॉलर्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। Therefore, Neil Riemer says any approach to the study of political science which does not have the input of an idealism or the ethicalism, it should not be accepted as a method of or as an approach to the study of political science। ऐसा वो विचार, ऐसा वो दर्शन, ऐसी वो पद्धति, अध्ययन की पद्धति जिसमें आदर्शवाद का कोई स्थान ना हो, मूल्यों का स्थान ना हो, ऐसे अप्रोच को, ऐसे पद्धति को हमें त्याग देना चाहिए। सो नील रीमर इज बेसिकली क्रिटिसाइजिंग द बिहेवियरल अप्रोच ऑन दिस काउंट। और उसने कहा, यह भी कहा है नील रीमर ने, दैट द करेक्टनेस और द फॉल्सिटी और द ट्रुथ और द फॉल्सिटी ऑफ वैल्यूज, सिंस इट कैनॉट बी इवैल्यूएटेड, इट कैनॉट बी examined scientifically or statistically, therefore values, they are outside the purview of behavioralism। एक तो देखिए रीमर ने ये बताया, नील रीमर ने बताया क्यों इसको त्याग देना चाहिए, इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें एक एथिकल अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। इस अप्रोच में कोई आदर्शवादी समझ नहीं है कि अर्थात अध्ययन शैली में कहीं
कहीं कुछ आदर्शवाद का कोई स्थान होना चाहिए, केवल एकदम चारवाकियन फिलॉसफी के आधार पर अध्ययन होना चाहिए, वो इसको स्वीकार नहीं करता। और दूसरा जो आधार नील रेमर ने कहा है, इसको इसलिए भी छोड़ देना चाहिए इस विचारधारा को, क्योंकि ये मूल्यों में इसमें आस्था नहीं है। इट डजंट हैव एनी फेथ इन द वैल्यूज, एंड बाय फेथ इट मीन्स दैट, बाय वैल्यूज इट मीन्स that the values, that is the universal values such as democracy, such as freedom, such as rights, such as justice, these are the classical values of the state. These are the classical values of human civilization. Democracy, justice, rights, freedoms, these are, and many of similar concepts, they are the eternal values of any human civilization or of any human society or of the human behavior. चाहे मानव व्यवहार के बारे में बात करें, चाहे राज्य के बारे में बात करें, चाहे समाज के बारे में बात करें, ये सब शाश्वत मूल्य हैं। लोकतंत्र के बारे में बात करना, न्याय के बारे में बात करना, अधिकारों के बारे में बात करना, स्वतंत्रता के बारे में बात करना, ये सब शाश्वत मूल्य हैं। और इन शाश्वत मूल्यों का अध्ययन अवश्य किया जाना चाहिए, लेकिन व्यवहारवाद ये कहता है कि इन शाश्वत मूल्यों का अध्ययन, इनका चिंतन, इनका वेरिफिकेशन हम वैज्ञानिक आधार पर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन मूल्यों को भी हमें त्याग देना चाहिए। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यूज। यू मस्ट हैव हर्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज in the discourse of the behavioralism. व्यवहारवाद के विमर्श में हमें मूल्यों के बारे में बार बार हमें सुनने को मिलता है। अल्टीमेटली, आफ्टर ऑल, व्हाट आर वैल्यूज? सो वैल्यूज they are those classical ideals that are related to the growth of the human beings or to the growth and the progress of the human society. मूल्य वो आदर्श हैं जो मनुष्य के या समाज के या राज्य के विकास या प्रगति से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। जैसे लोकतंत्र है, जैसे न्याय है, जैसे स्वतंत्रता, अधिकार है। लेकिन व्यवहारवादी कहते हैं हम इन मूल्यों को हम वैज्ञानिक रूप से न हम सत्यापित कर सकते हैं, न इनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं, न ये कितना सही है कितना सही नहीं है, इनके बारे में हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए हमें इन तथाकथित मूल्यों को हमें अनदेखा कर देना चाहिए, हमारे अध्ययन का ये भाग नहीं होना चाहिए। तो नील रेमर ने कहा कि इस प्रकार की विचारधारा, इस प्रकार की सोच मूल्यों के विषय में व्यवहारवाद जो रखता है, इसी कारण व्यवहारवाद को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। Any approach to the study of political science that rejects or that tries to ignore the importance or the significance of these classical values or ideals shouldn't be accepted as a method to the study of political science. तो इसलिए नील रेमर के ये दो आधार हैं जिसके आधार पर, ये दो तर्क हैं नील रेमर के, जिसके आधार पर उसने व्यवहारवाद को अस्वीकार करने की बात कही है। राइट? एक तो एथिकल अंडरस्टैंडिंग इसमें नहीं है, व्यवहारवाद में एथिकल रिकंस्ट्रक्शन का कोई उद्देश्य नहीं होता है, पहला आधार ये है। और दूसरी बात, जो क्लासिकल वैल्यूज़ हैं उसको हम सत्यापित नहीं कर सकते हैं कि ये कितना हमारे लिए उचित है, कितना नहीं है, इसको हम सत्यापित नहीं कर सकते वैज्ञानिक रूप से, इसलिए हमें इसको छोड़ देना चाहिए, है ना। तो अर्थात इन वैल्यूज़ को हमें त्याग देना चाहिए, ये व्यवहारवादियों का तर्क है। Therefore, these two arguments, they have been criticized by Neil Reamer, and on these two premises, Neil Reamer says that behavioralism should not be accepted by the intellectuals as a way to study the political science. तो एक तो आलोचक ये हो गया, है ना। दूसरा आलोचक कौन है? दूसरा आलोचक है जिसे हम कहते हैं, दूसरा आलोचक है क्रिश्चियन बे। Christian Bay is a very important, again he is a very important critic of behavioralism. Christian Bay says that behavioralism generally represents a pseudo-political science.
बिहेवियरलिज्म रिप्रेजेंट्स अ स्यूडो पॉलिटिकल साइंस। व्यवहारवाद एक छद्म राजनीतिक विज्ञान का प्रदर्शन करता है। व्यवहारवाद एक छद्म राजनीतिक विज्ञान का प्रदर्शन करता है। दैट बिहेवियरलिज्म रिप्रेजेंट्स अ स्यूडो पॉलिटिकल साइंस। इट इज नॉट अ जेन्युइन मेथड ऑफ पॉलिटिकल स्टडी। अर्थात ये राजनीतिक अध्ययन करने का एक सही एक माध्यम नहीं है। इट इज नॉट अ जेन्युइन मेथड, इट इज नॉट द राइट वे टू स्टडी द इश्यूज ऑफ पॉलिटिक्स। अर्थात राजनीति में जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर, उन प्रश्नों की जानकारी हमें व्यवहारवाद के माध्यम से नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये एक छद्म राजनीतिक विज्ञान है। व्यवहार क्यों छद्म है? क्योंकि व्यवहारवाद ने नॉर्मेटिव इश्यूज को किनारे कर दिया है। नॉर्मेटिव आइडियलिस्टिक इश्यूज को उसने अनदेखा करने का प्रयास किया, बल्कि कर ही दिया है। That normative issues, that you can say that the idealistic issues, they are not within the purview of behavioralism. In fact, they have been superseded by facts, by statistics, by figures, by data. So these are, he says, that the classical political science has been overshadowed by the so-called modern empirical studies. अर्थात जो परंपरावादी आदर्शवादी अध्ययन था, यानी जो नॉर्मेटिव अर्थात नियम आधारित जो अध्ययन था, सिद्धांत आधारित जो अध्ययन था राजनीतिक विज्ञान का, इसमें प्रमुख समस्याओं का जो एक नीति परक एक आदर्श परक अध्ययन होता था, नॉर्मेटिव डायमेंशन से जो अध्ययन होता था, दैट इज नो मोर देयर, रादर दैट हैज बीन टेकन ओवर बाय द एम्पिरिकल कंसिडरेशंस। एम्पिरिकल कंसिडरेशंस का क्या मतलब है? अगर आपने अनुभव किया है, एम्पिरिकल हमने पहले ही बताया था, व्हाट इज एम्पिरिकल अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज एम्पिरिकल साइंस। एम्पिरिकल साइंस मीन्स अनुभवात्मक विज्ञान। That is, in political science, you cannot have the same kind of scientificism as is found in natural sciences. अर्थात प्राकृतिक विज्ञानों में जिस प्रकार का विज्ञान दिखता है, जैसे भूगोल, जैसे रसायन शास्त्र में, भौतिक शास्त्र में, मानव शास्त्र में, जीव शास्त्र में, अर्थात वैसा तो विज्ञान हम राजनीतिक शास्त्र में नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी हम अपने अनुभव पर जो बात हम कहेंगे वो एक वैज्ञानिक होगी। दैट इज, इफ आई हैव एक्सपीरियंस सर्टेन थिंग, if I have a first hand experience of democracy, that democracy has done good to me, if I can relate my experiences to my actual observation, then I will say that this is my empirical observation, this is my empirical understanding. इसलिए क्रिश्चियन बे ने कहा कि आप लोग तो केवल एम्पिरिसिज्म को महत्व देते हैं, व्यवहारवाद तो केवल अनुभव को महत्व देता है। यानी अगर आपने अनुभव किया तो ठीक है, वो सही है। अगर आपने ये अनुभव नहीं किया कि आदर्श शासक का शासन कैसा होगा, अगर आपने उसको देखा नहीं है, एक ऐसा आदर्शवादी शासन देखा नहीं है, तो आपको वो मात्र एक दर्शन सा प्रतीत होगा। आपको मात्र एक कोरा, एक जिसे कहते हैं कोरा कागज, एक माने एक डे ड्रीम, आपको एक डे ड्रीम टाइप आपको अपीयर होगा। सो एनीथिंग दैट इज नॉट, that you have not experienced, anything that has remained beyond your experiences, which is not tested on grounds of your empiricism, will not qualify to be called as a science. अगर आपने किसी चीज़ का अनुभव नहीं किया है, यानी अगर आपने आम खाया, if you have tasted mango, then you can say yes, mango is the king of fruits. आपने अगर आम खाया तो आप कह सकते हैं हाँ, आम फलों का राजा है। बट इफ यू हैव नॉट टेस्टेड मैंगो, देन यू विल नेवर से दैट मैंगो इज द किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स, बिकॉज यू हैव नेवर टेस्टेड।
Leave aside if the whole world is saying, even if the whole world is saying that mango is the topmost fruit in the world of fruits, you will still not agree to this universalistic strain. पूरी दुनिया चाहे कह ले कि आम फलों का राजा है, फिर भी आप स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आपने उसको टेस्ट नहीं किया, और कहेंगे साहब जब तक हमने उसको खाया नहीं, टेस्ट नहीं किया, हम कैसे कहें कि ये फलों का राजा है. सो दिस इज कॉल्ड एम्पिरिसिज्म. इसे कहता है अनुभववाद, इसे कहता है अनुभव करना. इफ यू हैव एक्सपीरियंस सर्टन समथिंग, then you will say, yes, this is like that, I accept or I reject. But if I have not tasted, if I have not experienced any particular thing, then I am not going to say this is correct or this is incorrect. Therefore, Christian base says it is a pseudo-political science. Behavioralism is pseudo-political science because you want to test everything at the altar of the science. आप हर कुछ विज्ञान के नाम पर ही सत्यापित करना चाहते हैं, और इसलिए इस सत्यापन की आपको इतनी ज़्यादा सनक है. यू हैव बिकम सो इसेंट्रिक just for the so-called data or the statistics that you will not accept anything short of any data or statistics or short of your own experiences, that is the empirical understanding of the subject. अगर आपने किसी विषय को अनुभव नहीं किया है, उसका वास्तव में आपने अगर उसका अध्ययन नहीं किया, तो आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे. हम लोग कहते हैं ना, इन आवर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, इन अ नॉर्मल कन्वर्सेशन वी से दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. हम लोग कहते हैं ना, सत्य सबसे अच्छी नीति है, सत्यवाचन सर्वोत्तम नीति है. ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, अर्थात आप ईमानदार रहिए, और सबसे अच्छी बात जीवन में यही है. बट अ बिहेवियरलिस्ट विल नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग, ही विल नॉट एक्सेप्ट अनलेस ही हैज़ टेस्टेड द फ्रूट्स ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट पर्सन. जब तक एक व्यवहारवादी ने ईमानदार होने का फ़ायदा नहीं उठा लिया है, तब तक वो इस तथ्य को स्वीकार नहीं करेगा. बिकॉज ही हैज़ नॉट एक्सपीरियंस द फ्रूट्स ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट पर्सन, एंड सो लॉन्ग he has not experienced the honesty, the taste, he has not tasted honesty, he has not reaped the fruits or the benefits of honesty, he will never say that honesty is the best policy. This is called empiricism. इसीलिए क्रिश्चियन बे ने कहा है कि आप नॉर्मेटिज्म को तो आपने टोटली डिसरिगार्ड कर दिया. यू हैव शोन द डोर टू नॉर्मेटिज्म. यू डू नॉट बिलीव इन द फिलोसफिकल आइडियल्स. आप तो वही कहते हैं कि जब तक मैं किसी चीज़ को व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं लूँगा, मुझे अनुभव नहीं होगा, मैं स्वीकार नहीं करूँगा. Therefore he says it is a pseudo political science. पूरी दुनिया कह रही है, पूरे हम लोग कहते हैं ना, many things are just based on conventions. The British Constitution is based on conventions. अब वहाँ पर कोई ये कहा जाता है कि there is no constitution in Britain. ब्रिटेन में कोई भी संविधान नहीं है, टॉक्यूवेली ने कहा. एडमंड बर्न ने कहा नहीं, there is a constitution in England, but our constitution is with a difference. हमारा संविधान अन्यों से अंतर रखता है. Our constitution is with a difference, and that difference consists in a constitution that is not written. Our constitution is simply based on conventions. It is based on the unwritten rules. It is based on unwritten codes. ये अलिखित कानूनों पर आधारित है, अनरिटन प्रिसेप्ट्स पर आधारित है. इसलिए उन्होंने टेस्ट किया इसको. द ब्रिटिश पीपल और द ब्रिटिश स्कॉलर्स, दे नो व्हाट कन्वेंशंस आर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कन्वेंशन. देयरफॉर they always say conventions have an importance of their own. लेकिन व्यवहारवादी अगर अभी समय या परंपराओं का उनको ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, तो कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे. दैट इज समथिंग सेइंग लाइक दैट. तो इसलिए क्रिश्चियन बे ने भी इसकी बड़ी आलोचना किया है. इन दो आधारों पर उसने आलोचना किया है. स्यूडो पॉलिटिकल साइंस है, और दूसरी बात जो क्लासिकल वैल्यूज़ हैं. क्लासिकल वैल्यूज से मतलब जो डेमोक्रेसी, फ्रीडम, राइट, जस्टिस, इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. रूल ऑफ लॉ, सोशलिज्म, द रिपब्लिकन कैरेक्टर,
है ना. सो दीज आर सर्टन थिंग्स विच कैनॉट बी टेस्टेड ऑन द प्लैंक ऑफ साइंस. इसलिए वो इन चीज़ों को, दीज आर कॉल्ड वैल्यूज, इसी तो मूल्य कहा जाता है. तो इन मूल्यों को हम सत्यापित नहीं कर सकते हैं वैज्ञानिक आधार पर. इसलिए दे से दैट क्रिश्चियन बेसिस that normativism has been shown the door in stark preference to empiricism. Normativism has vanished whereas empiricism has come in, है ना. तो जो नीतिवाद है, नियमवाद है, आदर्शवाद है, वो तो तस्य लोपा हुआ, गायब हो गया और उसके स्थान पर आ गया एम्पिरिसिज्म यानी अनुभववाद हो गया, है ना. तो इसलिए इसने दो आधार पर व्यवहारवाद की आलोचना किया है. देन कम्स द थर्ड क्रिटिक, बर्नार्ड क्रिक. द थर्ड क्रिटिक इज अ ब्रिटिश स्कॉलर, नेम इज बर्नार्ड क्रिक. बर्नार्ड, BERNARD, बर्नार्ड क्रिक, CRICK. द साइंस ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स इज द बुक that he wrote in the year 1959. The Science of American Politics 1959 में ये उसने पुस्तक लिखी थी. He is a British scholar, है ना, बर्नार्ड क्रिक. और उसे कहा कि behavioralism is basically a philosophy of America. Behavioralism is basically prevalent in America, but it is not a universal method of studying political science. उसने कहा हमारे ब्रिटेन में तो कोई behavioralism नाम की कोई चीज़ ही नहीं है. ये अमेरिका की एक राजनीति विज्ञान की देन है, बट दिस इज नॉट यूनिवर्सल. ये सार्वभौमिक नहीं है, ये सार्वभौमिक विचारधारा नहीं है. सार्वभौमिक इसलिए नहीं क्योंकि इंग्लैंड में नहीं है. इंग्लैंड इज अ क्लासिकल, यू कैन से इट इज अ क्लासिकल कंट्री, वेयर इट इज अ कंट्री वेयर द क्लासिकल, you can say classical ideals, the ideals or the classics, it is a house of the ideals and the classics. अर्थात ब्रिटेन एक ऐसा घर है, एक ऐसा देश है जहाँ आदर्शवाद, सिद्धांतवाद, है ना, इन सारी चीज़ों को, नियमवाद, इन सारी चीज़ों का बड़ा मान सम्मान है. इसलिए उसे कहा कि अमेरिका में ये ठीक है, अमेरिका के लिए ठीक हो सकता है, आपने व्यवहारवाद नाम की विचारधारा को चलाया, बट टू से दैट बिहेवियरलिज्म is a universal philosophy, it is a universal method to study political science, that is simply not accepted because in Britain there is no behavioralism. We don't accept behavioralism in Britain. बर्नार्ड क्रिक ने कुछ आधार बताए, कुछ ऐसे आधार बताए, कुछ ऐसे तर्क दिए जिसके आधार पर वो व्यवहारवाद की आलोचना करते हैं. Why behavioralism should be rejected? He gives certain logic, he gives certain arguments. Number one argument is that he says that uniformities could be discerned in human behavior. बर्नार्ड क्रिक कहते हैं कि व्यवहारवादियों का मानना है कि हम मानव व्यवहार में हम कुछ नियमितताओं को खोज कर सकते हैं, रेगुलरिटीज या यूनिफॉर्मिटीज. हमने आपको इसके बारे में बताया था पिछले टर्न पर. नियमन के बारे में जब ने बताया था, किसी के व्यवहार को जब बार बार हम देखते हैं उसी पैटर्न में, उसी फैशन में, वही उसी प्रकार से रिपीट हो रहा है, एक मैकेनिकल वे में एक व्यक्ति का व्यवहार बार बार जब रिपीट होता है एक गिवन सर्कमस्टांसेस में, तो उसी को कहते हैं ये नियमन है. तो बर्नार्ड क्रिक ने कहा कि जो आप कहते हैं कि मनुष्य के व्यवहार को हम, कि मनुष्य के व्यवहार में हम कुछ हम नियमितताओं को खो सकते हैं, नियमित से नियमितताओं को खो सकते हैं, यानी कुछ रेगुलरिटीज़ को हम खो सकते हैं, कुछ यूनिफॉर्मिटीज़ को हम खो सकते हैं. He says that this is not possible. He says that it is easier said than done. Ultimately, individuals are individuals, they are not machines, they are not robots. Still, man is very different from artificial intelligence. These days you must have heard a lot about the artificial intelligence. In short we say AI, artificial intelligence. You must have heard several news on the TV channels that artificial intelligence is being used in a very big way, particularly in the defense sector. रक्षा के क्षेत्र में ये कृत्रिम जिसे आप कह लें इंटेलिजेंस, कृत्रिम विद्वता को बहुत बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग किया जा रहा है.
नए नए वेपन्स बन रहे हैं, नए नए रोबोट्स आ रहे हैं, machines are replacing humans, machines are replacing army jawans, so that there is lesser casualties of human, you can say, fighters. In place of humans, it is a machine that will be fighting the enemies maybe after some years. That is called artificial intelligence. तो इसलिए बर्नार्ड क्रिक ने कहा कि आप जब मनुष्यों के बारे में बात करते हैं तो वहां पर आप भूल जाइए कि वो रोबोट की तरह से बस एक ही प्रकार की हरकत करेगा। मनुष्य, दैट इंडिविजुअल्स, दे डू नॉट बिहेव लाइक अ मशीन, दे आर नॉट लाइक वॉच। मनुष्य कोई घड़ी के समान नहीं है कि अंदर के पुर्जे एक डायरेक्शन में यूं यूं चल रहे हैं या रिवर्स चल रहे हैं। दे आर नॉट समथिंग लाइक दैट। सो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस एनी काइंड ऑफ यूनिफॉर्मिटी और रेगुलरिटी इन द ह्यूमन बिहेवियर। बर्नार्ड क्रिक कहता है, because it is too difficult, it is too difficult to overcome the exceptional events that keep taking place in an individual's life. क्रिक कहता है, बर्नार्ड क्रिक कहता है कि क्योंकि मनुष्य के जीवन में जो अभूतपूर्व घटनाएं घटती रहती हैं, आप उसको जान नहीं सकते हैं। For instance, if I am thinking that now it is my time to play, it is my time to go to the stadium and play there, 7 o'clock. But what happens at 6:30? I get a news from I get a news from one of my friends that he is not well and that I should rush up to his house to take him to a doctor. So that means, when every day I am going to stadium to play at 7, there may be certain occasions, there may be certain days off and on when I am unable to go to the stadium to play. For instance, this time today I am not going to attend my friend. Maybe tomorrow I may have to go to the market to buy something. About 2 days back I couldn't go to the stadium because I was on a different task that day. तो इसीलिए वो कहता है बर्नार्ड क्रिक, ये जो आप कहते हैं हम यूनिफॉर्मिटीज खोज लेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उसने कहा ये जान लिए मनुष्य वो मशीन नहीं है कि एक प्रकार की हरकत करेगा। अगर हमने 3 दिन एक प्रकार का काम किया तो हम आगे की भी 30 दिन ऐसा काम करेंगे। जस्ट फॉरगेट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, एटलीस्ट विद ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मशीन्स एंड यू कैनॉट सिंपली अनरेवल द यूनिफॉर्मिटीज ऑन ह्यूमन बिहेवियर। तो पहली बात, उसकी आलोचना जो व्यवहारवाद की करता है बर्नार्ड क्रिक, वो इसी यूनिफॉर्मिटी को लेकर है। कहता है ह्यूमन बिहेवियर सिंपली कैनॉट बी जनरलाइज्ड। मनुष्य के व्यवहार को का हम सामान्यीकरण नहीं कर सकते, हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, है ना। दूसरी बात, व्यवहारवादियों ने